Hello and welcome everyone. Okay, so we'll begin with a short meditation. Sit back and relax. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Imagine yourself wrapped in a warm, loving embrace. Feel the love, the acceptance. Now imagine this love embracing every part of you, every thought, every emotion. Feel the sense of peace, of freedom. In this moment, surrender to God's love. Trust that you are loved just as you are. As you breathe in, repeat, I am loved. As you breathe out, repeat, I surrender. I surrender to God's love. Allow this surrender to bring you peace, to bring you joy. Okay, thank you so much. So we'll begin with today's session. Is my voice clear and audible? Yes, you are audible. Okay, thank you so much. All right, so I'll share the screen with you. Okay, so yesterday we had started with the second chapter, consciousness, which was on consciousness and the way out of pain. So we're going to continue, and this is PDF page number. Just give me a second. Okay, so it's PDF page number 36, and hard book is page 27. Okay, so so we're gonna start. Why does the mind habitually deny or resist the now? तो हमारा मन क्यों प्रेजेंट में नहीं रहना चाहता, क्यों resist करता है? Because it cannot function and remain in control without time, which is past and future. So it perceives the timeless now as threatening. Time and mind are in fact inseparable. तो अगर ना माइंड को कोई टाइम फ्रेम नहीं समझ में आता, तो वो टाइम में रहता है, इधर पास्ट में या फ्यूचर में, और प्रेजेंट से बहुत थ्रेटन्ड फील करता है माइंड. तो the author says, imagine the earth devoid of human life, inhabited only by plants and animals.
Would it still have a past and a future? Could we still speak of time in any meaningful way? The question, what is it, what time is it, or what's the date today, if anybody were there to ask it, would be quite meaningless. The oak tree or the eagle would be bemused by such a question. What time, they would ask. Well, of course, it's now. The time is now. What else is there? तो अगर हम इमेजिन करें अर्थ में जिसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तभी कोई पास्ट और फ्यूचर तो होगा नहीं ना, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में ये थोड़ी बात करेंगे कि आज क्या टाइम है, आज क्या डेट है। तो ये जो टाइम की पूरी टाइम जो शुरू ही ह्यूमंस ने किया है, इट्स अ ह्यूमन इन्वेंशन। तो क्योंकि अगर जो प्लांट्स और एनिमल्स में तो देर इज नो नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। उनके लिए तो टाइम है ही नहीं, उनके लिए इट इज जस्ट द प्रेजेंट। द टाइम इज नाउ। Yes, we need the mind as well as time to function in this world. But there comes a point where they take over our lives, and this is where dysfunction, pain, and sorrow set in. तो ऑथर वही कह रहे हैं कि हमें माइंड और टाइम दोनों चाहिए, फंक्शन करने के लिए। बट वो जब हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि हमें एक तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि ये क्या हुआ, और फिर हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। तो हमें जो जो माइंड है उसको नाउ बहुत थ्रेटनिंग लगता है कि अगर मेरा पास्ट नहीं होता और मेरे फ्यूचर में क्या होगा। बस इन दोनों बीच में ही फंसा रहता है माइंड। तो यही है कि वो हमें चाहिए, वी नीड टाइम टू फंक्शन, बट इट शुडंट बी कंट्रोलिंग आवर लाइव्स, इट्स टेकिंग ओवर आवर लाइव्स नाउ। The mind, to ensure that it remains in control, seeks continuously to cover up the present moment with past and future, and so, as the vitality and infinite creative potential of being, which is inseparable from the now, becomes covered up by time, your true nature becomes obscured by the mind. तो माइंड कॉन्स्टेंटली कवर अप करने की कोशिश करता है प्रेजेंट मोमेंट को, इधर पास्ट से या फ्यूचर से। तो जो हमारा जो ट्रू नेचर है, जो बीइंग का ट्रू नेचर है, जो सोल का इनेट नेचर है, वो माइंड कवर अप कर देता है। ये टाइम से, पास्ट और फ्यूचर में रहने से ऑब्सक्योर कर देता है माइंड, मतलब कवर अप कर देता है। An increasingly heavy burden of time has been accumulating in the human mind. All individuals are suffering under this burden, but they also keep adding to it every moment whenever they ignore or deny that precious moment or reduce it to a means of getting to some future moment, which only exists in the mind, never in actuality. The accumulation of time in the collective and individual human time also holds a vast amount of residual pain from the past. तो जो टाइम का टाइम और माइंड का क्या कनेक्शन होता है, एक तो जो पास्ट है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट को कंट्रोल करता है, और माइंड फ्यूचर को इमेजिन करता रहता है, विच इज जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनको फ्यूचर में इतना लॉस्ट होता है, बट प्रेजेंट मोमेंट उसको क्या थ्रेटनिंग लगता है, क्योंकि इधर वो पास्ट को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, या फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में द माइंड इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग। Okay, if you no longer want to create pain for yourself and others, if you no longer want to add to the residue of past pain that still lives on in you, then don't create any more time, or at least no more than is necessary to deal with the practical aspects of your life. तो ये जो टाइम जो है वो हमें सिर्फ अपने जो प्रैक्टिकल डे टू डे काम है उसके लिए खाली यूज करना है। बाकी जो हम पास्ट और फ्यूचर में जो इतना हम टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बाहर निकलना है। वी जस्ट
हैव टू यूज इट फॉर इट्स बेसिक नीड, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही. हाउ टू स्टॉप क्रिएटिंग टाइम. Realize deeply that the present moment is all you ever have. तो ये कैसे हो सकता है जब हम डीपली ये बात को रियलाइज करें कि जो है अब है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है. Whatever it is now. Make the now the primary focus of your life. Whereas before you dwelt in time and paid brief visits to the now, have your dwelling place in the now and pay brief visits to past and future when required to deal with the practical aspects of your life situation. तो हम कभी भी अगर नोटिस करें ना, माइंड कॉन्स्टेंटली पास्ट या फ्यूचर में होता है. तो अब हमने मतलब खुद से ये ऑब्जर्व करके खुद इंटेंशनली कोशिश करनी है अवेयरनेस में आने की, और प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करने की. और खाली पास्ट में या फ्यूचर में तब जाना जब बहुत नेसेसरी है. कुछ भी हमारे प्रैक्टिकल कामों में या जो डे टू डे हमारी रूटीन है उसमें जब बहुत नेसेसरी है, सिर्फ तभी हमने टाइम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना है. और ये हमने खुद प्रैक्टिस करनी है, घड़ी घड़ी माइंड को अभी के अवेयरनेस में लाना है, नाव में लाना है. ये हमने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज इतना इजी नहीं है माइंड को दोबारा कंडीशन करना. Always say yes to the present moment. What could be more futile, more insane than to create inner resistance to something that already is? तो ये बात हमें याद रखनी है. ऑलवेज से यस, जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो उसके लिए कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड जीरो रेजिस्टेंस. जब जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, then slowly we'll start living more in the present. We'll become more soul conscious. We'll start experiencing our innate original virtues. और वही ऑथर कह रहे कि और क्या, यू नो और क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी मोर इनसेन देन क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू व्हाट ऑलरेडी इज. मतलब इससे क्या हम और कितना हम सिली हो सकते हैं टू नॉट एक्सेप्ट समथिंग जो ऑलरेडी है. What could be more insane than to oppose life itself, which is now and always now? Surrender to what is. Say yes to life and see how life suddenly starts working for you rather than against you. तो जितना ज्यादा हम सरेंडर करेंगे, जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस हम लाएंगे लाइफ सिचुएशंस में, उतना ज्यादा things will start working out for us. तो सीकर कह रहे हैं द प्रेजेंट मोमेंट इज समटाइम्स अनएक्सेप्टेबल, अनप्लेजेंट और ऑफुल. तो ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जिनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, या हम बहुत पेन में होते हैं. तो ऑथर समझा रहे हैं इट इज एज इट इज. ऑब्जर्व हाउ द माइंड लेबल्स इट एंड हाउ दिस लेबलिंग प्रोसेस, this continuous sitting in judgment creates pain and happiness. तो ऑथर समझा रहे हैं आप खुद ऑब्जर्व करो कि जो भी सिचुएशन है, ये माइंड लेबल कर रहा है कि अनप्लेजेंट है, ये ये इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है. तो ये सारा कुछ माइंड ही लेबल कर रहा है, माइंड ही जजमेंट्स क्रिएट कर रहा है. By watching the mechanics of the mind, you step out of its resistance patterns and you can then allow the present moment to be. This will give you a taste of the state of inner freedom from external conditions, the state of true inner peace. Then see what happens and take action if necessary or possible. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि जब आप ये ऑब्जर्व करना शुरू हो जाओगे ना कि ये सब जजमेंट्स, ये सब माइंड क्रिएट कर रहा है सिचुएशन के रिगार्डिंग, ऑल एवरीथिंग इज माइंड क्रिएटेड. फिर जब आप वो ऑब्जर्व करने लगोगे, तब आप उन रेजिस्टेंस से बाहर निकलोगे, और ज्यादा एक्सेप्टेंस जब आप में आना शुरू हो जाएगा, तब आपको जैसे ऑथर ने कहा, यूल गेट अ टेस्ट ऑफ द इनर फ्रीडम, जो वो
हमारी सोल कॉन्शियस फीलिंग है ना, जो पावर्स है ऑफ द सोल, हमें तब वो एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। उसके बाद फिर हम जब उस स्टेट ऑफ काम में है, तब हम कोई भी डिसीजन या जो भी सिचुएशन है उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। तो ऑथर इज सेइंग एक्सेप्ट देन एक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करनी चाहिए। एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्सेप्टेंस, उसके बाद जो भी हमें एक्शन लेना है। Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. Underline, very important. Whatever the present moment contains, जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, हमने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि हमने ही ये चूज किया है। Always work with it, not against it. Make it your friend and ally, not your enemy. This will miraculously transform your whole life. तो ये बहुत एक अच्छा टूल है जो हम यूज कर सकते हैं कि हमारे साथ जो भी अगर नेगेटिव अनप्लेजेंट सिचुएशन आ रही है, हम ये लाइन को याद कर ले कि आई हैव चोजन दिस, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, it's what I've chosen, it's my friend, it's come to teach me something. तो उसके साथ काम करो, एंड दिस विल रियली हेल्प ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ, जैसे ऑथर कह रहे हैं। Okay, so next topic is past pain dissolving the pain body. Okay, the author is saying as long as you're unable to access the power of the now, every emotional pain that you experience leaves behind a residue of pain that lives on in you. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम जब तक हमें वो अवेयरनेस नहीं आती, तो हमारे साथ जो जो इंस्टेंसेस होते हैं वो बिल्ड अप होते रहते हैं, एंड वो हमारे साथ ही रहते हैं। इट merges with the pain from the past which was already there and becomes lodged in your mind and body. This of course includes the pain you suffered as a child, caused by the unconsciousness of the world into which you were born. तो जो ये पेन है, कई तो पास्ट लाइफ से ही चले आ रहा है, कुछ जो हमारे पास्ट लाइव्स में हुआ है जो हील नहीं हुआ, कुछ तो वो है, कुछ प्रेजेंट की सिचुएशंस में है। तो जब तक हमें वो अवेयरनेस नहीं आएगी ना, वो पेन बढ़ता ही जाएगा अंदर। This accumulated pain is a negative energy field that occupies your body and mind. If you look on it as an invisible entity in its own right, you are getting quite close to the truth. It's the emotional pain body. तो अगर हम एक ऑब्जर्वर की तरह से देखें, तो हम ये नोटिस करना शुरू हो जाएंगे कि हम हमें पता चलने लगेगा कि ये एक इमोशनल, एक इट्स एन इमोशनल पेन बॉडी विच इज नॉट अस, इट्स एन इनविजिबल एंटिटी। इसका एक अपनी खुद की पहचान है जो ऑब्वियसली वी कांट सी, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी फील्ड। और उसको ऑथर ने कहा है इमोशनल पेन बॉडी है। इट हैज टू मोड्स ऑफ बीइंग, डोमिनेंट एंड एक्टिव। A pain body may be dormant 9% of the time in a deeply unhappy person, though it may be active up to percent of the time. Okay, some people live almost entirely through their pain body, while others may experience it only in certain situations, such as intimate relationships or situations linked with past loss or abandonment, physical or emotional hurt, and so on. तो ऑथर कह रहे हैं कईयों में पेन बॉडी डोमिनेंट होती है, मतलब वो होती है, बट वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होती। मतलब जो पेन, इमोशनल पेन उनके अंदर होता है, बट वो एक्टिव नहीं होती। बट कईयों में कई वो एक्सपीरियंस नहीं करते, बट कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे अपने रिलेशनशिप्स में, या जो इमोशनल हर्ट है, तो उनमें फिर वो उभर, इट कम्स आउट, द पेन, द इमोशनल पेन जो दबा होता है उनके अंदर। Anything can trigger it, particularly if it resonates with a pain pattern from your past.
When it is ready to awaken from its dormant stage, even a thought or an innocent remark made by someone close to you can activate it. तो वही ऑथर समझा रहे कि जो ये पेन बॉडी होती है, जो ये इमोशनल ट्रॉमा हमारे अंदर होता है, वो कितने टाइम से अंदर होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोगों के लिए वो डोर्मेंट होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं होता। बट कई बार क्या होता है, बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है, बट जरा सा भी किसने कुछ कह दिया तो वो फिर सारा एक होता है ना, सारा अंदर का सारा वो निकल आता है, जो भी आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स बिलीव्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। और हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है, तो हल्का सा कोई कुछ कह दे और एकदम से हमारे अंदर का सारा वो जो होता है, जैसे कहते हैं ना अंदर की सारी जो कड़वाहट होती है वो बाहर निकलती है। तो दिस इज व्हाट द पेन बॉडी डज, वो अंदर दबी होती है, बट हल्का सा कुछ उसको कुछ कुछ कह दे तो एक्टिवेट हो जाती है। और ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार ही बहुत सारी बातें अंदर दबा के रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और फिर हल्का सा कोई कुछ कह दे तो एकदम से ही हमारा रिएक्शन निकल जाता है। Some pain bodies are obnoxious but relatively harmless. For example, like a child who won't stop whining. Others are vicious and destructive monsters, true demons. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करना कि कई बार वो जो पेन है इतने सालों से अंदर वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। Some are physically violent, many more are emotionally violent. Will attack people around you or those to you, while others may attack you. They are host. तो कई बार फिर ये जो अंदर की जो पेन बॉडी है वो इट कैन बी फिजिकली वायलेंट ऑल्सो, और इमोशनली भी आप किसी को हर्ट कर सकते हो, या कोई आपको हर्ट कर सकता है। तो कई बार क्या होता है, वो जो अंदर का जो गुस्सा होता है वो हम दूसरों पे निकालते हैं, और कई बार क्या होता है हम खुद पे ही निकालते हैं। The thoughts and feelings you have about your life then become deeply negative and self-destructive. तो ये जो वो इतना ज्यादा हमें ओवर पावर कर देता है, ये इमोशनल पेन, ये पेन बॉडी जैसे ऑथर कह रहे हैं। तो फिर बहुत ज्यादा हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यू नो so, illnesses and accidents are often created in this way. Some pain bodies drive their host to suicide. तो फिर जब ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें होने लगती है, और फिर एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, सुसाइड। तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। Okay. When you thought you knew a person, and then you are suddenly confronted with this alien, nasty creature for the first time, you are in for quite a shock. However, it's more important to observe it in yourself than in someone else. जब कुछ ऐसी आप सोचते हो कि नहीं, दिस इज ये मैं नहीं हूँ, जब वो आपके अंदर एकदम वो गुस्से वाली एक आवाज आती है, या फिजिकली जब आप किसी को हार्म करना चाहते हो, तो वो बहुत इट गेट्स वेरी शॉकिंग फॉर द पर्सन कि ये क्यों आ रही है मेरे अंदर, इतने इतने नेगेटिव थॉट्स, इतनी नेगेटिव फीलिंग्स क्यों है। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि आप इसको पहले अपने आप में ऑब्जर्व करो। Watch out for any sign of unhappiness in yourself, in whatever form. It may be the awakening pain body. तो जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो अपने आप को ऑब्जर्व करना उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि कहीं ये मेरे अंदर की पेन बॉडी तो नहीं जाग रही, कहीं वो इमोशनल पेन तो नहीं ऊपर आ रहा। This can take the form of irritation, impatience, a somber mood, a desire to hurt, anger, rage, depression, a need to have some drama in your relationship, and so on. Catch it the moment it awakens from its dormant state.
तो अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अगर ऐसे लग रहा है कि एक बिल्डअप हो रहा है इमोशंस का, जिसको हम दबा रहे हैं, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग। तो उसको उसको ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, वो अंदर दबता रहता है और कोई कुछ कह दे तो एकदम से वो बहुत ज्यादा गुस्सा, इरिटेशन सब बाहर आता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को ऑब्जर्व करें। The pain body wants to survive just like every other entity in existence, and it can only survive if it gets you to unconsciously identify with it. It can then rise up, take you over, become you, and live through you. It needs to get its food through you. तो वही ऑथर समझा रहे हैं कि इसको भी, जैसे कोई भी एंटिटी है, लाइक इट्स अ नेगेटिव एंटिटी विच इज इन अस समवेयर और द अदर। तो उसको भी इट वांट्स टू सर्वाइव। और वो कैसे होगा, अगर हम हम कॉन्शियस नहीं है। हम उसके साथ ही जब जब गुस्सा आता है या इरिटेशन आता है, हम सोचते हैं नॉर्मल है एंड वी कीप गोइंग अलोंग विद इट एंड वी एंड आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद इट। तो फिर ऑब्वियसली उसको वो इट गेट्स इट्स फूड, मतलब उसको वो एनर्जी मिल रही है हमारे से। So it will feed on any experience that resonates with its own kind of energy. Anything that creates further pain in whatever form: anger, destructiveness, hatred, grief, emotional drama, violence, and even illness. तो अगर कुछ और कुछ और ऐसी सिचुएशन आती है जो जिसमें कोई गुस्सा कर रहा है या कुछ, तो वो रेजोनेट करेगा। वो इमोशनल पेन जो हमारे अंदर है वो उसके साथ रेजोनेट करेगा। उसके साथ ही मिलके फिर वो और पेन में चला जाएगा। जैसे इससे कोई गुस्सा कर रहा है और हमारे अंदर ये पेन बॉडी, यू नो it's awakened, it's conscious inside us, and we are not aware of it। तो हम भी उस एंगर के फ्लो में चले जाएंगे। So the pain body, when it has taken you over, will create a situation in your life that reflects back its own energy frequency for it to feed on. Pain can only feed on pain. Pain cannot feed on joy. It finds it quite indigestible. तो जब वो अंदर नेगेटिविटी होएगी, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा ताकि उसको वो नेगेटिविटी को फ्यूल मिले, वो और ग्रो कर सके। तो जैसे ऑथर ने कहा है, जब वो पेन है, पेन से पेन ही मिलेगा। वी कैन नॉट गेट जॉय फ्रॉम पेन। और अगर हमारे अंदर पेन होगा तो हम जॉय को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे। Once the pain body has taken you over, you want more pain. You become a victor or a perpetrator. You want to inflict pain or you want to suffer pain or both. There isn't really much difference between the two. तो फिर क्या हो जाता है, वो पेन में रहना, हमें खुद भी हम उसी में रहना चाहते हैं, और जो हमारे साथ है हम उसको भी पेन ही देना चाहते हैं। तो उसमें कुछ डिफरेंस हमें समझ नहीं आता। वी आर सफरिंग ऑल्सो एंड वी आर मेकिंग अदर्स सफर एज वेल। You are not conscious of this, of course, and will vehemently claim that you do not want pain. But look closely and you will find that your thinking and behavior are designed to keep the pain going for yourself and others. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को ऑब्जर्व और एनालाइज करना कि क्या मेरी थॉट प्रोसेस है, क्या जो मेरे अंदर ये नेगेटिव पेनफुल थॉट्स है, क्या मैं इसको फीड कर रही हूँ, क्या मैं इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार मतलब हम होते पेन में हैं, बट हम बोलते कि नहीं, हमें नहीं चाहिए पेन। तो उसके लिए अपने आप को ऑब्जर्व और अपनी थिंकिंग को और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को कॉन्शियस करना, अवेयरनेस में लाना इज वेरी इम्पोर्टेंट। इफ यू वर ट्रूली कॉन्शियस ऑफ इट, द पैटर्न वुड dissolve. For to want more pain is insanity, and nobody is consciously insane.
तो वही ऑथर कह रहा है, अगर हम कॉन्शियस होते हैं कि ये पेन, हमारे ये थॉट्स, नेगेटिविटी इतनी आ रही है हमारे अंदर, तो हम वो पैटर्न को डिसॉल्व करते हैं, हम और पेन नहीं चाहते, बिकॉज किसी को भी कॉन्शियसली पेन में नहीं रहना है। The pain body, which is the dark shadow cast by the ego, is actually afraid of the light of your consciousness. So ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जो ये डार्क शैडो है ईगो का, जो जो हमारे माइंड को ओवर पावर करता है, वो एक्चुअली is afraid of the light, is afraid of our being, जो हमारा ट्रू इनेट नेचर है, उससे वो बहुत इंटिमिडेटेड फील करता है। तो वो पेन बॉडी हमेशा हमें उसी में रखना प्रेफर करती है, इट wants us to always be in that pain, stuck in all these mind के thoughts and illusions. So it is afraid of being found out. Its survival depends on your unconscious identification with it, as well as on your unconscious fear of facing the pain that lives in you. तो उसका सर्वाइवल यही है कि हम उससे उसे आइडेंटिफाई ना करें, हम ऑब्जर्व ना करें, उस अवेयरनेस में ना आए। तो दैट इज द वे टू सर्वाइव। और वो चाहता भी नहीं है कि हम अवेयरनेस में आए, वो उसी में रहना चाहता है। But if you don't face it, if you don't bring the light of your consciousness into the pain, you will be forced to relive it again and again. तो जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे कि ये मेरा ट्रू नेचर नहीं है, ये दिस इज नॉट मी, ये जो सब मेरे अंदर जो ये इमोशनल पेन है, ये नेगेटिविटी है, जब तक हम उस पे हमारी मतलब सोल पावर को नहीं यू नो अवेयरनेस में लाएंगे, तब तक वो ही जो पेन है वो घड़ी घड़ी हमारे साथ होता रहेगा। मतलब वील कीप गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशंस अगेन एंड अगेन। The pain body may seem to you like a dangerous monster that you cannot bear to look at, but I assure you that it is an insubstantial phantom that cannot prevail against the power of your presence. मतलब कई बार इतना ज्यादा वो इमोशनल पेन हो जाता है, इतना ज्यादा हमें बिल्कुल ही ड्रेन कर देता है कि हमें लगता है कि हम इससे कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। बट वही ऑथर कह रहा है कि मैं अश्योरेंस देता हूँ कि ये जो भी है, ये अगर आप प्रेजेंट में रहना शुरू करोगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, हम ये बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम अपने अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, हम जितना ज्यादा कॉन्शियस होंगे, we'll be able to come out of all these things. We'll start to have a better understanding कि ओके ये मुझे थॉट आ रहा है, बट मैं ये नहीं हूँ। आई एम दिस लाइट, आई एम दिस प्योर कॉन्शियसनेस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पावर। तो ये अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। Some spiritual teachings state that all pain is ultimately an illusion, and this is true. The question is it true for you? A mere belief doesn't make it true. तो ऑथर कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली सब कहते हैं कि जो भी ये पेन है, जो हम इमेजिन करते हैं, सब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, इल्यूजन है। बट क्वेश्चन है कि ये आपके लिए सच है, सिर्फ एक बिलीव करने से वो सच नहीं हो जाएगा। सो डू यू वांट टू एक्सपीरियंस पेन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड कीप सेइंग दैट इट इज एन इल्यूजन? तो अगर हम पेन को एक्सपीरियंस करते रहें और फिर बोले कि नहीं ये इल्यूजन है, डज दैट फ्री यू फ्रॉम द पेन? वो फिर हमें फ्री तो नहीं करेगा ना पेन से। What we are concerned with here is how you can realize this truth. That is, make it real in your own experience. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, यू नो जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक डिफरेंस हमारे लाइफ में हमें पता नहीं चलेगा। So the pain body doesn't want you to observe it directly.
and see it for what it is. तो पेन बॉडी नहीं चाहती कि हम ऑब्जर्व करें, हम जैसे सीखते हैं कि हमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना है। तो जब तक ये सब जो हम सुनते हैं वो हम प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जैसे जब कोई सिचुएशन आती है, हम इमीडिएटली रिएक्ट करने के बजाय जब पॉज करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा माइंड काम हुआ, कैसे हम प्रेजेंट में आए। जब हम ये एक्सपीरियंस करेंगे तब जाके वी विल स्टार्ट बिलीविंग कि यस, इट वाज नॉट मी, इट वाज दिस ट्रिगर, दिस इमोशनल ट्रिगर दैट आई वाज हैविंग. So the moment you observe it, feel its energy field within you and take your attention into it, the identification is broken. तो जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तब उसकी आइडेंटिटी ब्रेक होती है. A higher dimension of consciousness has come in. I call it presence. You are now the witness or the watcher of the pain body. This means that it cannot use you anymore by pretending to be you, and it can no longer replenish itself through you. You have found your own innermost strength. You have accessed the power of now. तो जब हम उसको देखते हैं, जब कोई ऐसा हमारे अंदर से ऐसा एकदम से इमोशन आउटबर्स्ट होने लगता है, जब हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब ऑथर कहते हैं कि तब वो जो हायर कॉन्शियसनेस है हमारी, तब हमारी सोल पावर का हमें अंदाजा होता है, एक्सपीरियंस होता है. तो वही ऑथर उसको बुलाते हैं प्रेजेंस, दैट इज व्हेन वी बिकम प्रेजेंट. एंड तब हम रियलाइज करते हैं कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है. वी हैव दिस पावर टू कंट्रोल, वी हैव दिस पावर टू सस्टेन आवरसेल्फ, टू लेट गो ऑफ थिंग्स. तो हम हमारी अपनी खुद की पावर्स का एहसास होता है फिर. What happens to the pain body when we become conscious enough to break our identification with it? Unconsciousness creates it, consciousness transmutes it into itself. तो अनकॉन्शियस जब होते हैं तब वो पेन बॉडी क्रिएट होती है, जब हम हमें पता नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है. बट जब हम कॉन्शियस होने लगते हैं तब वो ब्रेक होती है, तब वो पेन बॉडी खत्म होती है. Saint Paul expressed the universal principle beautifully. Everything is shown up by being exposed to the light, and whatever is exposed to the light itself becomes light. वाह, ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ना, कि अ, जो भी जैसे हम रूम, जैसे अंधेरा है रूम में एंड वी पुट द लाइट ऑन, तो पूरा सब जगह रोशनी हो जाती है. एंड यही वो कह रहे हैं कि इवन इन अस, जो भी वट एवर इज एक्सपोज टू द लाइट इट सेल्फ बिकम्स लाइट. तो जो भी हमारे साथ आएगा वो भी जब हम अवेयर होंगे तो दे विल ऑल्सो कम इन टू अवेयरनेस. Lust, as you cannot find the darkness, you cannot find the pain body. Trying to do so would create inner conflict and thus further pain. क्योंकि जैसे हम उसको मुझसे फाइट नहीं कर सकते, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस में आना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम उसको उसके साथ लड़ने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, मुझे क्यों ये फीलिंग्स आ रहे हैं, उससे फिर और पेन क्रिएट होता है. तो वॉचिंग इट इज इनफ. So the important point is that we are supposed to watch it, not identify ourselves with it or not judge it. Watching it implies accepting it as part of what it is at that moment. तो वही है कि वॉच वॉच करने से हम फिर एक्सेप्टेंस में आते हैं कि हाँ ये हो रहा है, अब मुझे इस पे काम करना है. ओके, तो आई थिंक हम यहाँ पे आज एंड करते हैं. और जो आज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. ओके, तो जो आज के क्वेश्चंस हैं वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन चैप्टर 2 द ऑथर सजेस्ट that the author suggests whatever the present moment contains
accept it as if you had chosen it. तो आज जैसे हमने पढ़ा ऑथर कहते कि जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो जैसे आप ही ने ये चूज किया है. So, what do you feel about this? Do you agree or disagree? Can you recall any personal experience where the power to accept helped you transform your life? तो कोई ऐसा experience जहाँ आपने acceptance से आपने अपना अपना transform किया है या वो situation improve हुई है आपकी? Or question two, what have you understood about the connection between mind and time? Why does our mind resist the now moment? तो माइंड और टाइम का क्या कनेक्शन है और हमारा माइंड क्यों रेजिस्ट करता है प्रेजेंट में रहना. और जो थर्ड क्वेश्चन है जो अभी हम उसके बारे में ही पढ़ रहे थे, व्हाट इज पेन बॉडी. तो क्या है पेन बॉडी, व्हाट आर इट्स टू मोड्स एंड हाउ कैन इट बी ट्रिगर्ड. तो कौन से दो मोड्स हैं इसके और ये कैसे ट्रिगर होता है, अ, किस किन चीजों से ट्रिगर होता है. तो ये आज के तीन क्वेश्चंस हैं. आप ग्रुप में भी आंसर कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी. तो थैंक यू सो मच फॉर joining today's session. We'll see you again tomorrow. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, sister.